ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we have this document here by the name TOC, right? First page blank. Second page से आपका जो document का text है वो start होगा. Okay. So here I'm taking the two chapters of your employability skills. One is stress management skills. Some notes are there, right? See this. And the second chapter I've taken green skills. Okay. So total we have 8 pages, from which first one is blank for making that TOC part, right? So what is TOC? We have discussed in our previous class. Table of contents. Yeah, Or it is the type table of index. content means it is an index. So we can create automated in table of content means automated index by setting the document first. अब वो फर्स्ट स्टेप क्या है जो हम डॉक्यूमेंट को सेट करते हैं? We actually have to make the document with consistent styles, right? हमें एक स्टाइल्स में कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करनी पड़ती है. ओके, कैसे? सी वी हैव टू मेक एक्चुअली डिफरेंट लेवल्स. जैसे तुम लोगों ने अपने बुक में टीओसी देखा होगा, उसमें अलग अलग लेवल्स बने होते हैं, लाइक चैप्टर नेम ऑन वन लेवल, देन मेन हेडिंग्स ऑन सेकंड लेवल and subheadings on third level. So same way, if you want to add more levels, then you can add, right? So उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? Here we are using 3 levels. One level we are giving here, we are using here for the chapter name. So this is chapter name, stress management skills part A. इसको देखो, when I click here, यहाँ तुम्हें विंडो में नजर आ जाएगा कि इसको मैंने क्या दिया हुआ है. This is heading 1. We can apply style from here. So here I'm using heading 1 to make a first level. जहां समझ नहीं आएगा ना, प्लीज आस्क मी देयर ओनली, क्योंकि इसमें अगर एक स्किप करके पार्ट तो ये नहीं समझ में आएगा. ओके, सो फॉर द चैप्टर नेम we are setting heading 1. So here we have the stress management chapter name, heading 1. Now the next is meaning and importance of stress management. So this is the first heading of the chapter. So here we are giving heading 2 to make the second level, right? So इसको हमने select करके इसको हमने heading 2 दे दिया, right? Now this is again the main heading, stress casual agents. Again make it heading 2 to make it second level. अब ये देखो, stress casual agents के अंदर इसकी 4 सब categories हैं: mental, physical, social and financial. Now make it heading 3 to make the third level. Give it heading 3. So हमने इसको यहाँ पर क्या किया? Select this mental word and give here heading 3, right? Same way physical also, social and financial also. ये हमने heading 3 बना दिया. अभी तक हम 3 लेवल यूज कर चुके हैं और यही मतलब हमें डिफरेंट लेवल्स में अलग अलग हेडिंग्स प्रोवाइड करनी है. यस. और मैम ये हर चैप्टर में डिवाइड करनी पड़ेगी, लाइक हम एक बार इस चैप्टर में कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आपने डॉक्यूमेंट में जितना कंटेंट है आपको उसके लिए इसको पहले कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए सेट करना पड़ेगा. ठीक है, अभी हमने 3 इसमें लेवल्स यूज किए, बट एक्चुअली वी हैव टू गिव for a different levels. We have to give heading 1 2 3 4 5 6 that way, in that way only. Reason being कि by default we can use up to 10 levels, right? So हम वो 10 levels बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ heading 1 heading 2 heading 3 इस तरह से heading 10 तक use कर सकते हैं, because by default we have heading 1 to heading 10 in our styles option, right? तो हमें पहले हेडिंग ही देना पड़ेगा. दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट फॉर क्रिएटिंग टीओसी. ओके, अभी फाइनेंशियल तक हो गया. नाउ इंपॉर्टेंस इज अगेन द सेम मेन हेडिंग. सो हेडिंग 2 वी हैव गिवन हियर. देन कम्स स्ट्रेस कैजुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. अब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को भी हमने हेडिंग 2 दे दिया. अब स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक की सब कैटेगरीज हैं: फिजिकल, योगा, मेडिटेशन. इसमें हेडिंग 3 देनी पड़ेगी. यस यस एग्जैक्टली. तो हमने यहाँ पर इनको हेडिंग 3 दे दिया. बिकॉज़ ये थर्ड लेवल है. थर्ड लेवल है. करेक्ट करेक्ट. नाउ कम टू इंपॉर्टेंस ऑफ एबिलिटी. मैम लाइक फर्स्ट लेवल हमारा चैप्टर का नेम होगा, सेकंड लेवल हमारे जितने भी सब टॉपिक्स होंगे टॉपिक्स के, एंड द थर्ड इज सब कैटेगरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर हेडिंग.
राइट। मैम जो सब कैटेगरीज होंगी उस मेन हेडिंग की, तो उनको हम हेडिंग 5, 6, 7 देंगे या फिर अलग ही हेडिंग? सपोज आपने सब हेडिंग 3 हेडिंग दिया, सेम होंगी, सेम होंगी। आपने सब हेडिंग अगर हेडिंग 3 को दिया है और उसके बाद किसी सब हेडिंग के अंडर आपकी और भी कैटेगरीज हैं, तो आप उसको क्या दोगे? हेडिंग 4। ठीक है, उसको आप हेडिंग 4 बनाओगे, राइट। सो सेम वे हमने यहाँ पर इनहैंस एबिलिटी को हेडिंग 2 देकर और उसकी जो सब हेडिंग्स थी सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, इनको हेडिंग 3 दे दिया। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम न्यू पेज in the same document, green skills. अब green skill is the chapter name, so here we have given here heading 1. heading 1, yeah, correct, heading 1. Introduction heading 2, this heading one again 2, heading 2, ecosystem heading 2, ecosystem के deforestation में अंदर heading 3, heading 3, correct. ये हमने heading 3 दे दी, natural resources again heading 2 and air conservation, water conservation again heading 3 and green economy main जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसमें heading 3 दी है। करेक्ट। हमने कंटेंट पार्ट से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, टेक्स्ट पार्ट से, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग हियर द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंडेक्स ऑफ द होल बुक, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, तो उसमें हेडिंग्स का कंसिस्टेंसी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, so ma'am, this is how we can make a document consistent. yes now अब ये पार्ट हमारा इतना कवर हो गया। click here on the blank page where you want to insert your, you want to create your TOC, right? Here we have this. Manya, you are joining with other device also? No ma'am. No ma'am. Okay, so here we have this insert option, insert tab, just click here. Go to index and table option. We have another category, index and table, with the same name. Click here. See this index and index table, right? Window. We have 5 tabs here. We'll discuss it in one by one. हम एक साथ इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे because वो बहुत confusing हो जाएगा. So we have 5 tabs. Index table, entries, styles, columns, background. Why this problem always happen in this class कि ये बार बार ये अलग अलग नाम से बच्चा क्यों ऐड होता है? एकदम एंटर करने दो ना, डिस्टर्ब करेंगे आपको। मैम हाँ, मैं एंटर नहीं करने दे रही। क्लास में भी, नीतू मैम की क्लास में भी वो बच्चा एक डिस्टर्ब कर रहा था, एंटर मत करने दो। ये मैम बच्चा क्या करता है कि ये एक का नेम यूज करता है और दूसरे का सरनेम यूज करता है ताकि इसको आइडेंटिफाई ना कर सके कोई। रिमूव कर दो। चलो, so we have 5 tabs here: index table, entries, styles, columns and background. So first, index table, different options. Title, here we have by default tables of content, but we can change here, but we can change it later ताकि तुम पहले difference देख सको. So title, table of contents. Type, what we are making, we are creating table of content, so we can click here. Third is we have this checkbox, protected against manual changes. So if I click here, then we can't change our TOC manually after creating it. We can't change, right? So इसको हम protect कर देंगे read only के लिए. Checkbox पे click कर दिया. Creating for the entire document or for any chapter, it's up to us. We can use, we can take it accordingly. Entire document, right? Now, very important part, evaluate up to the level. अब हमने कितने लेवल्स यूज किए हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट में? Ma'am, 3. 3 levels. Correct. 3 level. So we have up to 10, but जितने लेवल्स हम यूज करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ उतने ही सिलेक्ट करेंगे, 3 levels. Got it? Then comes create from outline. Yes. अब इसके लेफ्ट साइड पर देखो, तुम्हें इसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा होगा. आउटलाइन मैंने रिमूव किया तो देखो आउटलाइंस रिमूव हो गई और यहाँ ऊपर अब ऐड हो गई है. आउटलाइन मींस द डिफरेंस, जितना पार्ट तुम्हारा, जो जितना स्पेस तुम्हारा पेज नंबर और तुम्हारी हेडिंग के अंडर होता है वो वहां पर आउटलाइन क्रिएट करके शो करता है, तो वो रिमूव हो जाएगा. बट यू हैव टू क्लिक हियर, राइट? इंडेक्स मार्क हम क्लिक नहीं करेंगे, क्लिक करके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगी सेकंड स्टेप के अंदर. एडिशनल स्टाइल्स ऑल्सो वी आर नॉट टेकिंग अभी राइट नाउ, ठीक है? सो हमने आउटलाइन लिया
एंड देन सिंपल अभी हमने आपके इसमें यूज किए हैं फीचर्स. नाउ क्लिक ऑन ओके. सी दिस, आपके पूरे डॉक्यूमेंट का ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया. राइट, आपने हेडिंग दिया था टेबल ऑफ कंटेंट. Ma'am, even the page numbers are mentioned here. Yes, correct. Even the page numbers are mentioned here. जिस पेज पर जो पर्टिकुलर टॉपिक था वो उसका पेज नंबर अपने आप क्रिएट करके पूरा टेबल, पूरा इंडेक्स तुम्हें दिखा देगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो. टोटल हमारे पास यहाँ 9 पेजेस वी आर यूजिंग इन द डॉक्यूमेंट. राइट, अब यहाँ yes, पर लेवल्स देख रहे हो तुम. लेवल्स में तुम्हें डिफरेंस क्लियर हो रहा है. फर्स्ट लेवल इज स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, विच इज द चैप्टर नेम. हेडिंग इज मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, स्ट्रेस कैजुअल. अब स्ट्रेस कैजुअल की सब कैटेगरीज थी मेंटल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, तो वो यहाँ पर नजर आ रही है. ठीक है, अगेन इम्पोर्टेंस वाला, स्ट्रेस वाला, अगेन दैट हेडिंग. यहाँ पर ये जो एरोज और 1 2 3 नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि मेन हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने इन्हें यूज किया. इसके सब पार्ट्स हैं. यस, बट सब पार्ट्स में हम इस तरह से एरोज टू हेडिंग 3, या हमने इसका लेवल 3 बना रखा है ना. बट अभी तो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट में ये एरोज और नंबर्स रिमूव नहीं किए थे, जस्ट टू शो द डिफरेंस. राइट, लेकिन हम जब टीओसी बनाते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं होना चाहिए. If you want to add these bullets or numbering bullets to same any list, yes, to any list, then you can add, afterwards, after creating the TOC. जबकि TOC के रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें एडेड नहीं होता, एनी लिस्ट और बुलेट्स नंबरिंग एडेड नहीं होती है. गॉट इट? इतना पार्ट क्लियर है? नंबर्स एंड बुलेट्स तो इसीलिए रहा है ना, बिकॉज जो हमारे टेक्स्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड थे, वी जस्ट कॉपीड दैट एंड नेम्ड इट हेडिंग 1 and 2. क्यों? क्योंकि जब हमने उसको लेवल 3 बनाने के लिए हेडिंग 3 अप्लाई किया एज अ स्टाइल, तो वो उन बुलेट्स और नंबरिंग को भी अप्लाई हो गया, इसीलिए वो यहाँ पर शो आया. हाँ जी बेटा. मैम, जिस चैप्टर का हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, पहले उस चैप्टर के सारा कंटेंट हमें डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. तो डॉक्यूमेंट में ही तो बनाओगे, और किस में बनाओगे? तुम्हारे मतलब पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट में तो नहीं बनेगा ना? नहीं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में फिर तुम्हारे पास टीओसी में दिखेगा ही क्या? Yes, टीओसी, ऑटोमेटेड टीओसी का तो फायदा तभी है ना, इसका मेन यूज ही तभी है कि जब तुम्हारा पूरी डॉक्यूमेंट्री तुम्हारी रेडी हो, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द होल डॉक्यूमेंट आप उसके बाद टीओसी को क्रिएट कर सको विदाउट एनी मैनुअल चेंज. क्योंकि तुम नीचे फिर इसमें एक और एडवांटेज क्या है कि नीचे जब तुम मैनुअली डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करोगे, सपोज तुम बाद में कोई हेडिंग चेंज करते हो या सब कैटेगरीज ऐड करते हो, then also you can update it. और आपके अपडेट करते ही टीओसी लास्ट पेज पे आ जाएगा या फर्स्ट पेज पे? फर्स्ट पेज पे इंडेक्स पहले आता है. यस, ओनली फर्स्ट पेज. अब आपने कोई भी बुक आप देखते हो तो इंडेक्स स्टार्टिंग में ही होता है ना, बाद में तो नहीं होता. यस मैम. तभी तो वो पेज नंबर्स एक्सेप्ट करेगा, करेक्ट पेज नंबर्स. राइट, तो ये 3 लेवल्स क्लियर है ना इसके अंदर, जो तुम्हारा ये पूरा इंडेक्स बना. राइट, नाउ अब हम इसमें एक्स्ट्रा कैसे फीचर्स को ऐड करते हैं. राइट क्लिक हियर, वी हैव एन ऑप्शन एडिट. सो क्लिक ऑन एडिट. अब हमने इतना पार्ट कर लिया ऐड. नाउ अनदर इज कि हमने 3 लेवल्स बनाए थे और उसको हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 दिया था. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सपोज, अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ, सपोज आई वांट टू चेंज द स्टाइल ऑफ हेडिंग 3. ठीक है, हेडिंग 3 को हमने स्टाइल चेंज करना है. राइट, अब यहाँ पर देखो स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स की जो सब कैटेगरीज थी वो हमारी स्टाइल 3 थी. मैंने क्या करती हूँ, मैं 3rd पेज पे हम लोग गए, ये मेंटल लिया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर इट इज हेडिंग 3 नाउ, बट आई एम चेंजिंग इट टू द कंटेंट 1. दिस इज अ पैराग्राफ हेडिंग. ये एक पैराग्राफ स्टाइल है, कंटेंट 1, ये मैंने इसको दे दिया. लेकिन फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल ऑलरेडी मेरा वही हेडिंग 3 ही कैटेगरी है. अब इसका तो मैंने कंटेंट 1 चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया. ओके, इतना क्लियर है? अब वापस हम टीओसी में आ रहे हैं. टीओसी, राइट क्लिक, अपडेट. मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट कंटेंट एंड द हेडिंग वी गिव? आई एम टेलिंग यू, फॉन्ट अलग हो जाएगा. यस, नहीं फॉन्ट अलग नहीं होगा, अभी तुम डिफरेंस अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा. नाउ राइट क्लिक हियर ऑन द टीओसी, अपडेटेड. अब तुमने जब देखो इसको अपडेट किया अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट, ये अपने आप अपडेट हो गया. इसमें देखो मेंटल नजर आ रहा है वर्ड? नहीं, नो मैम नहीं आ रहा. मैम बिकॉज़ उसका हमने वो चेंज कर दिया ना, हमने उसका स्टाइल चेंज कर दिया. यस बट मैम. नाउ
After changing the style, we want to make that style as a part of this TOC. तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे? Right click, edit. We have this option here in the styles, sorry, additional styles. यहाँ पर ये जो checkbox है, click here on the checkbox. This activates 3 dots. हम इसमें content 1 ऐड कर देंगे. Yes, content 1. अभी फिलहाल ये देखो कि इसमें कंटेंट 1 हमारा इस साइड है, बाय डिफॉल्ट इधर होता है. ये तो मैंने लास्ट क्लास में उनको समझाया था, इसलिए वो साइड चला गया. अब कंटेंट 1 हमने थर्ड स्टेज पर यूज किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेंट थर्ड पर राइट एरो से हम वहां पर ले जाएंगे. थर्ड स्टेज, थर्ड लेवल पर हमने कंटेंट 1 को यूज किया है एंड ओके. देखो अब मेंटल वर्ड वापस आ गया. यस मैम. और जबकि ये वर्ड हम चेंज कर चुके थे कंटेंट 1, बट हमने वहां पर मैम प्लीज कंटेंट आपने तो अभी इसको मैम हमने एडिट करके ऐड कर दिया ना कंटेंट 1. यस, अब हमने उसको एडिट करके ऐड कर दिया कंटेंट 1. मैम ये जो कंटेंट 1 होते हैं एंड दीस पैराग्राफ स्टाइल्स, दीस आर द बाय डिफॉल्ट गिवन. लाइक वी कांट मेक एनी न्यू स्टाइल एंड देन यूज इट इन द टेबल ऑफ कंटेंट. जैसे मैंने कंटेंट 1 यूज किया है, you can even use your customized style on that part. Custom style भी use कर ही सकते हैं. But after using that custom style, आपको उसको उस लेवल पर ऐड करना पड़ेगा. जैसे मैंने अभी कंटेंट 1 को स्टेज 3 के लिए मींस हेडिंग 3 के लिए ऐड किया. क्लियर मैम. तो you can use anyone. बट जब हम TOC स्टार्ट करते हैं ना, तब हमें वही बाय डिफॉल्ट हेडिंग 1 2 3 ही लेना पड़ता है. ठीक है, तो अब देखो इसमें मेंटल वर्ड ऐड हो गया. क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर ऐड कर दिया था. राइट हम स्टार्टिंग में हम दूसरे वो नहीं ले सकते अपने स्टाइल. नहीं, बाय डिफॉल्ट हमें जो लेना होता है, बाय डिफॉल्ट वी हैव टू गिव हेडिंग 1 2 3 लाइक दैट ओनली, एंड वी कैन बाद में फिर हम अपने स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं. यस करेक्ट. और जो स्टाइल तुम ऐड करोगे वो यहाँ पर लिस्ट में से एडिट में जाकर वो तुम उसमें उस पर्टिकुलर लेवल पर ऐड कर दोगे. जैसे हमने अभी कंटेंट 1 ऐड किया. मैम TOC के लिए हमें फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ना है, सेकंड पेज से मतलब कंटेंट लिखना शुरू करना है. यस फर्स्ट पेज आप ब्लैंक छोड़ोगे TOC क्रिएट करने के लिए. ओके मैम. अगेन गो टू एडिट. अब एडिशनल स्टाइल का भी काम तुम्हें पता चल गया क्या होता है, क्योंकि जो एडिशनल स्टाइल तुम यूज कर रहे हो यू हैव टू ऐड इट हियर इन दिस विंडो. ओके, अब देखो जैसे हमने 3 लेवल यूज किए थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इवेल्युएट अप टू 3 लेवल दिया. नाउ आई एम रिमूविंग 1 लेवल. अब मैंने लेवल 3 की जगह 2 ले लिया है. ओके, सी दिस, जितना थर्ड लेवल का TOC कंटेंट था वो सारा डिलीट हो गया, वो सारा रिमूव हो गया. डिफरेंस क्लियर हो रहा है? क्योंकि मैंने वहां पर सिर्फ आपके 2 लेवल सेलेक्ट किए हैं जो तुमने यूज किए थे. अब यहाँ पर ये मेंटल वर्ड क्यों दिखा रहा है थर्ड लेवल का? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसका स्टाइल चेंज कर रखा है. ये हमारा हेडिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने इसका कंटेंट 1 वाला स्टाइल ले लिया ना. राइट, बट हमने कंटेंट 1 वाला तो आगे कर रखा था मैम थर्ड पे, तो वो यहाँ पे आया कैसे? क्यों? क्योंकि हमने उसका स्टाइल चेंज किया ना. हम TOC बना रहे हैं इसीलिए. समझ नहीं रहे तुम लोग. अभी देखो, अभी मैं क्या करते हैं, वापस हम जाते हैं ये मेंटल को. ये देखो, इस मेंटल वर्ड को हमने कंटेंट 1 दिया था. अगेन मैं इसको हेडिंग 1 दे दूंगी, हेडिंग 3 सॉरी, हेडिंग 3 दे दिया. वहां से हट जाएगा. अब वो वहां से हट जाएगा अपडेट करेंगे तो. यस, अब नाउ राइट क्लिक एंड अपडेट इट. सी, हट गया मेंटल वर्ड. क्यों हटा? क्योंकि वो हेडिंग्स का पार्ट नहीं था और हम वहां पर लेवल सिर्फ हेडिंग के बेसिस पर में दे रहे हैं. मैम बट मेंटल वर्ड को तो आपने लेवल 3 में ऐड किया था ना. हाँ, लेवल 3 में ऐड किया था ना. यस मैम, वही कह रहा हूं. फिर जब मैम लेवल 3 को हटाया तो फिर वो क्यों नहीं हटा? वो इसलिए क्योंकि हम वहां पर इवेल्युएट कर रहे हैं हेडिंग्स के बेसिस पर. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि हम जब भी TOC स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम हेडिंग 1 2 3 ही स्टाइल्स लेकर स्टार्ट करते हैं, और ये पूरा का पूरा TOC उन्हीं हेडिंग्स के बेसिस पर इवेल्युएट करता है. वो जो हमारी हेडिंग 1 थी वो हमारा फर्स्ट लेवल था, हेडिंग 2 हमारा सेकंड लेवल था, हेडिंग 3 हमारा थर्ड लेवल था. जब मैंने मेंटल वर्ड को हेडिंग 3 से हटा दिया तो वो उस लेवल का पार्ट नहीं बचा ना, है उसकी सभी कैटेगरी नहीं बचा, इसीलिए उसने वहां पर शो किया. अब वापस हमने ऐड कर दिया, हमने उसको ऐड किया, लेकिन वो हमारा लेवल नहीं है. इट इज नॉट द लेवल. अब वो चेंजेस क्या आए, पहले हमने जो लेवल को
स्टाइल दे रखा था वो हमारा हेडिंग 1 2 3 था। अब हमने उस लेवल पर जो स्टाइल चेंज करा वो हमने एडिशनल स्टाइल पुट किया है, जबकि यहाँ पर जो सिर्फ इवेल्युएशन होता है, जहां ये मैंने 2 का 3 कर दिया या 2 कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ उस लेवल के बेसिस पर होता है। अगर तुम मतलब लेवल के अकॉर्डिंग वो चेंज कर देगा। यस उसका यस वो चेंज कर देगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वाली ही हेडिंग्स के लेवल को एक्सेप्ट करता है। अगर आप Okay, एडिशनल ma'am. लेवल डाल भी दोगे तो भी वो उसको उस कैटेगरी में पुट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसको टेम्पररी बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ उसका मैम स्टाइल मतलब अगर हम चेंज लेवल किया 2 है, भी इसमें से रिमूव कर देंगे तब भी वो रहेगा? तो बिल्कुल रहेगा। अभी अगर हम लेवल 1 कर देंगे इसको, ओके, तो देखो सिर्फ हमारे 2 चैप्टर के नाम बचे हैं। लेवल 1 हमने कर दिया सिर्फ, तो सिर्फ 2 चैप्टर के नाम बचे हैं। अब अगेन एडिट हियर, कम बैक टू द थर्ड 3 लेवल्स, ऑल द 3 लेवल्स, सो सी दिस, अब हमारे तीनों लेवल्स आ गए। यस मैम। राइट, एंड मैम तीनों लेवल्स के साथ मेंटल भी आया, बिकॉज हमने जब वो कस्टम क्योंकि अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया क्योंकि है। हमने यस, हेडिंग 3 में अब कर दिया। आपने तो यस मैम, करेक्ट, अब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है वापस हेडिंग 3 के अंदर। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस Right. मैम। मैम लाइक वहाँ पे कस्टम वन एक बाय डिफॉल्ट डिजाइन था मैम, अगर हम अपना प्री कस्टमाइज बनाना चाहे तो हाउ कैन वी मेक इट? प्री कस्टमाइज का फायदा क्या है फिर बनाने का? वो तो तुम फिर टाइप करके वैसे ही इसके सेटिंग्स कर सकते हो जैसे तुम चाहते हो बनाना। नॉर्मली हम जो है मैनुअल भी तो इंडेक्स बनाते ही है ना किसी भी डॉक्यूमेंट का। Yes, तो फिर ma'am. इस फीचर का यूज ही क्या होगा अगर तुम्हें प्री ही करना है? बट यू कैन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। अब ये तुम आगे स्टेप्स में भी देखोगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ तुम्हारा टॉपिक, बहुत लंबा है ये टॉपिक अभी। ठीक है, अगेन गो टू एडिट ऑप्शन, इवेल्युएशन, ठीक है, एडिशनल स्टाइल समझ में आ गया, आउटलाइन समझ में आ गया, ये हमारा ये जो टैब का काम था ये हमारा कंप्लीट हो गया। राइट, नाउ आवर नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। अभी हम सिंपल वाले ले रहे हैं क्योंकि लास्ट के दो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ वी आर टेकिंग बैकग्राउंड, वी कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ टीओसी। अभी तुम्हें ग्रे कलर मैम अभी नजर आ हमने रहा है। सिर्फ एक ही किया है ना, इंडेक्स एंड टेबल और यस बैकग्राउंड यस, कर रहे अभी हैं। हमने सिर्फ एक टैब हमने किया है जिस टैब के बेसिस पर तुम्हारा जनरल टीओसी क्रिएट होता है। यस मैम। प्लस इफ यू वांट टू ऐड एडिशनल स्टाइल देयर देन यू कैन ऐड, जैसे हमने वो कंटेंट 1 एडिशनल स्टाइल को डाला। ठीक है, ओके now मैम। our second is this one background, so we can change the background. abhi by default it is gray, right? We can add color to the background. If you are using this, select the color. Okay, मैम वी ये कैन तो- आल्सो ऐड ग्राफिक्स। yes, Ma'am, even we can can't we add the gradient colors? no यस। अभी फिलहाल आप ऐसा बैकग्राउंड कलर ऐड करोगे एंड द सेकंड ऑप्शन And we जो have is side- graphics. जो साइड में व्हाइट कलर है मैम उसको चेंज नहीं कर सकते? Ma'am, that that is is not the the header, I working think. part, that is not वर्किंग the प्लेस working में नहीं area. है। वर्किंग एरिया मैम बट अगर हम उसके स्केल को इंक्रीज कर देंगे लेफ्ट एंड राइट साइड से तो आएगा। वो अपने आप चेंज हो तो हो जाएगा। जाएगा। तो वो चेंज हो जाएगा। Yes, ma'am. Now the second way is to add graphic is file browse करोगे वहां पर, so we have this logo open, ये प्रीव्यू में आपका स्कूल लोगो आ गया। राइट, we have 3 options to add this as a graphic: position, area and type. पोजीशन पर क्लिक करके अभी हमारा ये सेंटर क्लिक्ड है, इफेक्ट जो आपका आएगा। सो व्हेन आई क्लिक हियर आपके सेंटर में देखो ये लोगो लगकर आ गया। ठीक है, अगेन मैम कैन यू प्लीज रिपीट दीस स्टेप्स मैम प्लीज? पोजीशन पे क्लिक किया हमने अभी सेंटर अलाइनमेंट रखा हुआ है। दिस ये जो है आपका पॉइंट्स जो मेंशन हो रहे हैं ना, दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ द इमेज। राइट, तो आपने सेंटर पे क्लिक किया हुआ है तो इसीलिए आपका सेंटर अलाइन आपका इस तरह से नजर आ रहा है। ओके, राइट क्लिक हियर, अगेन गो टू एडिट। नाउ अब ये लेफ्ट पर क्लिक कर दो, लेफ्ट का जो बॉक्स बना हुआ है ओके करो, देखो तुम्हारा लेफ्ट पे चला गया। ठीक है, अगेन एडिट, तो जिस साइड को पॉइंट पर क्लिक करोगे उधर को चला जाएगा। दीज आर द अलाइनमेंट्स, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सेंटर, मिडल, ये तुम्हारी अलाइनमेंट्स है अलग अलग। एरिया, सेकंड इज एरिया। अब एरिया पे जब आपने क्लिक करा तो वो पूरा एरिया कवर कर लेगा जितने एरिया में तुम्हारा टीओसी बना हुआ है। सी दिस, टीओसी का एक्स्ट्रा स्पेस उसने छोड़ दिया और टीओसी जहां पर बना हुआ है उसका पूरा एरिया उसने उस पर्टिकुलर इमेज से मैम ये वाटरमार्क के फॉर्म में आया है ना, लाइक हमारा yes in the form of yes in the form of watermark only. only, yes in the form of watermark only. I am using here as a solid image, but अगर आप इस इमेज को as a background set करोगे for the whole area then you have to use it in the form of watermark. So उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट, हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं?
we can set the transparency. लेकिन आप जब ट्रांसपेरेंसी मैम सेट लेकिन उसके करोगे, लिए पहले हमको पहले इमेज लेनी पड़ेगी, उसको Yes. वापस से सेव करना पड़ेगा एंड देन हाँ, लाइक इसी बिल्कुल, में बिल्कुल। हो जाएगा। देखो अभी मैंने तुमको लास्ट क्लास में एक ड्राइंग एरिया दिखाया था ना इसका, वो yes, ड्राइंग ma'am. एरिया में तुम इमेज को ले जाकर ट्रांसपेरेंसी सेट करके यू कैन अगेन सेव इट एज अ जेपीजी, तो वो इमेज तुम यूज कर सकते हो And अगर ma'am, तुम्हारे then पास use it ट्रांसपेरेंट here. इमेज नहीं है तो। यस, सो वी हैव एन ऑप्शन। अब अगर हम टाइल पर क्लिक करेंगे तो वो आपको टाइल की फॉर्म में दिखा देगा। गॉट इट? मैम सो इससे दिस तो वे कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा ना क्योंकि हम मैम सॉलिड बिकॉज इमेज यूज डार्क कर रहे हैं। बैकग्राउंड है। यस यस, क्योंकि हम सॉलिड इमेज ट्रांसपेरेंसी यूज कर कम रहे हैं। कर देंगे तो दिख जाएगा। यस यस, अभी हमने यही बैकग्राउंड ले लिया लाइट कलर। इतना पार्ट क्लियर है चिल्ड्रन? Yes, ma'am. So we Yes, ma'am. so today we have discussed only 2 tabs of this TOC part. ठीक है, अभी we can customize in other ways also, and there are so many interesting ways in which we can customize it this TOC, right? तो वो हम अब next class में discuss करेंगे। Got it? Okay, ma'am. मैम बट TOC हम बनाते तो लास्ट में ही है ना, बिकॉज व्हेन आवर होल कंटेंट इज रेडी एंड देन वी हाँ। जस्ट लीव Yes, फर्स्ट। तभी तो फायदा है ना ऑटोमेटिक TOC बनाने का, क्योंकि तुम जो भी उसमें डॉक्यूमेंट में इवन आफ्टर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट आप उसमें जो चेंजेस करते रहोगे और आप एक अपडेट बटन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा TOC अपडेट होता जाएगा। ये बेनिफिट सबसे बड़ा इसके अंदर, तुम्हें मैनुअली बार बार उसमें चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। मैम अदरवाइज इज तो दिस फीचर इन वर्ड आल्सो? yes, we have this feature in Word also, but Word में उसको कस्टमाइज करने के इतने ज्यादा लेवल्स नहीं होते। We have number of levels here only. Got it? Okay, ma'am. चलो, यस मैम। that's all for the class today. अच्छा, one more thing, अभी हमारा ना ये वाला जो टॉपिक है TOC वो कंप्लीट नहीं होगा, एंड ट्यूसडे you have MCQ। तो MCQ के अंदर तुम्हारा सेशन नंबर 5 तक आएगा, जो लास्ट हमने क्लास तक किया था। अभी Okay, मैं ma'am. TOC वाला उसमें नहीं। Ma'am, you can stop recording. ओके,